Hello dear students of class 11th. Today I am here to deliver second video lecture on the third unit, that is motion in a plane. Dear students, this video lecture is in continuation of the last video lecture in which we shared with you vector algebra. I discussed what are vector quantities, what are scalar quantities, what are tensor quantities, how many types of vector are present. So I am going to continue after this topic. We have discussed so many types of vector: unit vector, position vector, displacement vector, equilibrant vector, collinear vector, coinitial vector, coplanar vector. One special vector was left, that is orthogonal vector. So my today's video lecture will start from orthogonal vector. Orthogonal, it is a mathematical term which refers perpendicular. Orthogonal lines means perpendicular lines. So orthogonal vector will be meaning of orthogonal vector will be perpendicular vectors. So such vectors which are perpendicular to each other known as orthogonal vectors. Any two vectors, any three vectors which are perpendicular to each other will be the example of orthogonal vector. Vectors acting perpendicular to each other called orthogonal vector. For example, vector I, vector j and vector k, they are orthogonal. Why? Because along x-axis the vector of unit magnitude is I, along y-axis vector of unit magnitude is j, and along z-axis vector of unit magnitude will be k. It is clear from the picture I and j are perpendicular to each other, j and k are perpendicular to each other, k and I are also perpendicular to each other. So these are the simplest example of orthogonal vectors. Except this, when we will go in vector algebra in detail, you will see, we will show, or in the question they will ask, so that these vectors are orthogonal. So we will try to show that if angle between them is 90 degree, then these vectors will be orthogonal, because orthogonal refers perpendicular. This was the topic which left in the last video lecture. Now we are going to continue this video lecture by very simple topic, that is method to represent vector quantity. Method to represent vector quantity. Suppose we have a vector quantity A. If we write simply A, it represents magnitude. But if we place arrow sign above it, it represents vector A. We will read it as vector A. This will be read as magnitude of A. So if we have a vector quantity and we want to represent that vector quantity, what is the simplest method? Put arrow sign above the symbol. Dear students, you have studied in last lecture UV. This U simply without arrow represents initial speed. This V simply without arrow represents final speed. But if we put arrow sign above it, it will represent initial velocity, or if we put arrow sign above V, it will represent final velocity.
if you write F and let F represent force, simple F represents magnitude of force. If we put arrow sign above it, we get force vector. This will have a definite direction. One is saying a 5 Newton force is acting on the body. In this statement, direction of force is not given. So you will see F is given as 5 Newton. One is saying a 5 Newton force is acting on the body along positive x-axis. Then you will write vector F as 5 into I, because you know I is the unit vector along positive x-axis. So, and whose magnitude is 1. So if I is having magnitude 1, then multiplied by 5, this will have magnitude 5. And in which direction it is acting? Along positive x-axis. One is saying a body is moving with a velocity of 10 meter per second along minus y-axis. So you will write vector V as 10j with minus sign, because velocity is acting along minus y-axis, and along minus y-axis unit vector was minus j. One is saying a force of 100 Newton is acting on the body along negative z-axis. Then you will represent that force as minus 100 into k, because along negative z-axis unit vector will be minus k. If in any question it is given that velocity of body is 3I plus 4j, it means velocity is acting along x-axis also, as well as velocity is acting along y-axis also. Along x-axis magnitude of velocity is 3, along y-axis magnitude of velocity is 4. It means during motion body is having two velocities, one along x-axis, one along y-axis. This velocity which is acting along x-axis help body to move along x-axis. This velocity will help body to move along y-axis. So as body will have motion along two axes, such type of motion is called motion in a plane. तो जब कोई बॉडी किसी प्लेन में चलेगी उसके पास दो वेलोसिटीज होंगी. दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट एंड दिस इज द वे टू गेस. किसी ने कहा एक बॉडी मोशन में है, उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन 3i माइनस 5j है. इसका मतलब along x axis body is having acceleration 3 meter per second square, and along minus y axis body is having acceleration 5 meter per second square. Someone is saying body is having force 5i plus 2j minus 6k. इसका मतलब बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हैं. 5 न्यूटन का फोर्स along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 2 न्यूटन का फोर्स along पॉजिटिव वाई एक्सिस, और 6 न्यूटन का फोर्स along माइनस जेड एक्सिस. So this is the way to guess if vector quantity is given, and this is the way to write vector quantity. Only symbol will represent magnitude, and symbol along with the arrow will represent vector quantity. So I think how we write vector quantity, and if vector quantity is given, how we guess, I think it will be clear to you. Next is rectangular component form of vector. Dear students, in future more than 90% topics related with this vector will be based on it. So just try to understand what is the meaning of it. Rectangular component form of vector. जैसे अभी हमने आपसे कहा कि अगर बॉडी का मोशन प्लेन में हो रहा है तो बॉडी के पास एक नहीं बल्कि दो वेलोसिटी होगी. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इस तरह से दी जाए तो देख के ही बता सकते हैं हम कि बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 3 है और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 5 है.
अगर किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स इस तरह से दिया जाए तो देखकर हम बता सकते हैं कि बॉडी पे लगने वाला फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस 2 न्यूटन का है, अलोंग माइनस वाई एक्सिस 3 न्यूटन का है, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस 4 न्यूटन का है। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन इस तरह से दिया जाता है, इसका मतलब देख के ही हम बता सकते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर 3 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और निगेटिव जेड एक्सिस पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। These are the examples to represent vector quantity for velocity, force and acceleration. Here magnitude is given. Let magnitude is not given. Someone is writing like this, that body is having velocity vector vxi, vyj, vzk. इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड vx है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर vy है और पॉजिटिव जेड एक्सिस पर vz है। दिस इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। राइट एनी वेक्टर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, सो मल्टीप्लाइड बाई आई। This is the velocity component along y-axis, so multiplied by j, and this is the velocity component along z-axis multiplied by k. How we write acceleration in rectangular component form? axi, ayj, azk. What are ax, ay, az? Component of acceleration along x, y and z axis. How we write force in rectangular component form? fxi, fyj, fzk. What are fx, fy, fz? Component of force along x, y and z axis. How we write any vector c in rectangular component form? cxi, cyj, czk. What are cx, cy, cz? Component of vector c along x, y and z axis. How we write vector m in rectangular component form? mxi, myj, mzk. What are mx, my, mz? Component of vector m along x, y and z axis. So this is the way to represent any vector quantity. This is the general method. When we discuss the vector algebra in future, we will use general vectors like this. This is the general acceleration vector. It is a special acceleration vector because here magnitudes are given. This is general velocity vector. It is a special velocity vector because here magnitude are given. This is general force vector. This is general vector c. This is general vector m. So whenever we discuss vector algebra in future, this method we will use, which is called rectangular component form of vector. Now we are going to discuss one more topic interesting, that is addition of vector. How we add vector quantities. Vector addition. Dear students, you know vector addition requires magnitude as well as direction. So while we add vector quantities, while we are interested to find the resultant of two vector quantities, this method we use. This method is also called tip and tail method. इस मेथड को हम टिप एंड टेल मेथड भी कहते हैं। ये मेथड ये कहता है, इफ वी आर इंटरेस्टेड टू ऐड टू वेक्टर क्वांटिटीज, फर्स्ट वी ड्रा फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी इन गिवन डायरेक्शन, then on the tip of first vector quantity we put tail of second vector quantity in given direction. Then by joining initial and destination point we get the resultant or we get the addition of two vectors. Once again, if we are interested to add two vector quantities or if we want to find the resultant of two vector quantities, first we draw first vector quantity
in given direction, then on the tip of first vector quantity we put tail of second vector quantity in given direction, then join initial and destination point. This vector will be the resultant of two vectors, or this vector will be the addition of two vectors. How we do it? By practically I am going to tell you. Suppose you have vector A of 5 Newton acting towards right, vector B of 2 Newton also acting towards right, and they are asking find the value of vector A plus vector B, means find the resultant of these two. अभी हमने आपसे कहा सबसे पहले वेक्टर को गिवन डायरेक्शन में हम ड्रा करेंगे, तो हम पहले टिप और टेल मेथड यूज़ करने के लिए हमारे पास पेंसिल, स्केल और प्रोटेक्टर होना चाहिए. Just now we are discussing how with the help of pencil, scale and protector we find the resultant. After that we will discuss the formula how we find the resultant without using pencil, scale and protector. बगैर इन तीनों को यूज़ किए फॉर्मूले को यूज़ करके कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे वो बाद में बताएंगे. हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना है, तो हमने एज्यूम किया लेट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टली 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि वेक्टर ए 5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है. 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करने के बाद एरो टुवर्ड्स राइट लगा देंगे, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा. उसके बाद हम वेक्टर बी के बारे में सोचेंगे. वेक्टर बी भी हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल 0 डिग्री है. तो वेक्टर ए के टिप पर वेक्टर बी की टेल रखेंगे और 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि वेक्टर बी 2 न्यूटन का है. इसके बाद इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे. तो ये जो डॉटेड लाइन आपको मिल रही है, दिस लाइन ज्वाइंट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. यही डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को. क्या होगा, इस लाइन की लेंथ जब आप निकालोगे तो 7 मिलेगी. तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू क्या आएगी, 7 न्यूटन आएगी. इसलिए हम लोग आगे बोलेंगे कि अगर दो वेक्टर्स एक डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको ऐड कर दीजिए. केस 2, यही दो वेक्टर्स हैं, फिर हमको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड करनी है. लेकिन अब आपको वेक्टर बी के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया. मान लीजिए आपसे कहा गया वेक्टर बी इधर एक्ट कर रहा है 2 न्यूटन का, जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल बना रहा है. हम क्या करेंगे, मेजरमेंट्स एज्यूम करेंगे. लेट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो हम फिर 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे जो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगी. इसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्टर रखकर 60 डिग्री पर 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि वेक्टर बी 2 न्यूटन का है तो 2 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट होगा ये, और ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि वेक्टर ए के टिप पर वेक्टर बी की टेल उसी डायरेक्शन रखे जिस डायरेक्शन वेक्टर बी दिया गया है. नाउ दिस इनिशियल पॉइंट इज फाइनल पॉइंट, डेस्टिनेशन पॉइंट ज्वाइन कर दिया. ये जो डॉटेड लाइन है यही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा. कितना होगा आप स्केल से इसकी लेंथ मेजर कर लीजिएगा. अगर 6.5 आती है तो 6.5 लिखिएगा, 6.9 है तो 6.9 लिखिएगा, 6.4 है तो 6.4 लिखिएगा. चलिए हाइपोथेटिकली मान लीजिए इसकी लेंथ 6.4 आती है तो हम बोलेंगे दिस विल बी इक्वल टू 6.4 न्यूटन. थर्ड एग्जाम्पल ऑफ एडिशन. वेक्टर यही दोनों दिए गए हैं, लेकिन वेक्टर बी के डायरेक्शन को उन्होंने इस तरह कर दिया. ये वेक्टर बी है 2 न्यूटन का, जो हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री एंगल बना रहा है. फाइंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. सेम स्टेप, 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा की जिसने वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया. यहाँ पर प्रोटेक्टर रखकर हमने 90 डिग्री पर 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा की, इसने वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया. इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन किया.
इसने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट किया। ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 है, ये 2 है, तो √29 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आएगी। नेक्स्ट, यही दोनों वेक्टर्स आपको दिए गए हैं। वेक्टर बी के डायरेक्शन को उन्होंने और चेंज कर दिया, इधर की ओर वेक्टर बी कर दिया 2 न्यूटन का, जो हॉरिजॉन्टल से लेफ्ट 120 डिग्री एंगल बना रहा है। हमने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा की, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखकर 120 डिग्री पर 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा की। इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू होगी, जो भी लेंथ इसकी आएगी। चलिए, लेंथ इसकी 3.7 आती है, तो हमने 3.7 न्यूटन लिख दिया वैल्यू। वो आप क्या आएगी, लेंथ आप मेज़र कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे कहा गया वेक्टर ए 5 न्यूटन का ही है टूवर्ड्स राइट, और वेक्टर बी 2 न्यूटन का है टूवर्ड्स लेफ्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा की, एरो टूवर्ड साइड लगाया। इसके बाद इसके टिप पर इसकी टेल रखी। ये वेक्टर इससे 180 डिग्री पर है, तो यहाँ से 180 डिग्री पर हमने वेक्टर बी ड्रा किया। ये एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन किया, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ये पूरा 5 था, ये 2, तो ये 3 न्यूटन बचेगा। और इसी एक्टिविटी को देखने के बाद सीधे हम ये कह सकते हैं कि जब 2 वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट दोनों का डिफरेंस होता है। 5 न्यूटन और 2 न्यूटन का डिफरेंस 3 न्यूटन आएगा। दिस इज हाउ वी ऐड 2 वेक्टर्स, known as tip and tail method. Now subtraction of 2 vector, vector subtraction. Dear students, vector subtraction is also a type of addition. Vector A minus vector B will be equal to vector A plus vector minus B. इसको इस तरह लिखा जा सकता है। तो सब्ट्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ एडिशन। वेक्टर ए में वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब वेक्टर ए में वेक्टर माइनस बी को ऐड करना है। बस यही आपको याद रखना है। टिप और टेल मेथड वही होगा। कैसे करते हैं, सीधा एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आपके सामने मैं बार बार कर रहा हूँ। वेक्टर ए 5 न्यूटन का दिया गया इधर, और वेक्टर बी 2 न्यूटन का दिया गया इधर। अब आपसे कहा गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा की, एरो राइट लगाया। ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ वेक्टर बी राइट डायरेक्शन में 2 न्यूटन का है, तो इतनी ही बड़ी लाइन ड्रा करके एरो इधर कर दें तो ये बन जाएगा वेक्टर माइनस बी। क्योंकि ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि डायरेक्शन बदलने पर साइन बदल जाता है। ईस्ट की ओर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेस्ट की ओर वेलोसिटी होगी -10 मीटर पर सेकेंड। राइट डायरेक्शन में लगने वाला वेक्टर 2 न्यूटन का था, लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होगा, -2 न्यूटन का। नाउ अब हमको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, मीन्स हमको इसको ऐड करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ एडिशन। वंस अगेन, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी। तो हमको ये वेक्टर ए दिया गया था, ये वेक्टर बी दिया गया था, हमको ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना था। इसका मतलब हमको ए में माइनस बी को ऐड करना। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर माइनस बी है। इसको इसमें कैसे ऐड करें, ऑन द टिप ऑफ फर्स्ट वेक्टर पुट द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर, रख दी टेल, ये तो सेकेंड वेक्टर है। ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दिस विल बी द वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू आएगी 3 न्यूटन। कुछ और एग्जाम्पल से आप और क्लियर कर लेंगे। इधर की ओर वेक्टर ए है,
5 न्यूटन का, इधर की ओर वेक्टर बी है 2 न्यूटन का, ये एंगल 60 डिग्री ही है। आपसे कहा गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू निकालिए। वंस अगेन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी। तो पहले हम इस वेक्टर बी को वेक्टर माइनस बी बदलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल है, इतनी बड़ी लाइन इसके अपोजिट ड्रा कर दें तो ये बन जाएगा वेक्टर माइनस बी। ना ये 60 डिग्री था, इधर की ओर 60, तो इधर क्यों कितना होगा 120 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री था। ना हमको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू निकालनी है, मीन्स हमको वेक्टर ए में वेक्टर माइनस बी को ऐड करना है, मीन्स इसको और इनको ऐड करना है। ये वेक्टर भी है, ये वेक्टर माइनस बी है। क्या करें, 5 सेंटीमीटर लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया गया। इसके टिप पर इसकी टेल रखी, इसकी टेल हॉरिजॉन्टल से नीचे जा रही है 120 डिग्री पर, तो ये होगा वेक्टर माइनस बी। ये एंगल होना चाहिए 120 डिग्री। ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इट विल बी द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर। कितनी आएगी स्केल से आप मेजर करके लिख लीजिएगा। सी वन मोर एग्जाम्पल। Vector A of 5 Newton is given towards right and vector B of 2 Newton is given in this direction। आपसे कहा गया वेक्टर A माइनस वेक्टर B की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले वेक्टर B को माइनस B में बदलिए, इतनी भी लाइन एरो बदल दीजिए डायरेक्शन, ये वेक्टर माइनस B बन जाएगा। इसको और इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी। क्या करें, 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा करें, इसके टिप पर इसकी टेल रखें, इसकी टेल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री डाउनवर्ड। ज्वाइन, दिस विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर आप इस एक्टिविटी को याद करें जो मैंने पहले किया था, जब वेक्टर ए इधर था 5 न्यूटन का और वेक्टर बी इधर था 5 न्यूटन का, 2 न्यूटन का, तो हमने कहा था ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसकी वैल्यू आ गई √29 न्यूटन। यहाँ भी ये 5 है, ये 2 है, तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की वैल्यू भी √29 ही आएगी। इसका क्या मतलब हुआ, अंडर व्हाट कंडीशन addition and subtraction of two vectors will be equal when they are acting mutually perpendicular to each other। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो एडिशन होता है और उनका जो सब्ट्रैक्शन होता है दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन जितना आ रहा है वही आ रहा है यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एडिशन एंड वेक्टर एडिशन। See one more example। आपसे कहा गया वेक्टर ए ऑफ 5 न्यूटन एक्ट टुवर्ड्स राइट एंड वेक्टर बी ऑफ 2 न्यूटन इज एक्टिंग लाइक दिस। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो पहले वेक्टर बी को माइनस बी में बदलिए, इतनी ही बड़ी लाइन इधर ड्रा कर दीजिए, एरो इधर कर दीजिए, ये 120 था तो ये 60 बचेगा, तो ये बन जाएगा वेक्टर माइनस बी। वंस अगेन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस बी, मतलब इसको और इसको हमको ऐड करना है। क्या करें, 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा की, इसके टिप पर हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री नीचे हमने 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा की, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या होगा, लेंथ ऑफ स्केल से आप मेज़र कर लेंगे। एंड फाइनली दिस इज वेक्टर ए
of 5 Newton. This is vector B of 2 Newton. They are asking find vector A minus vector B. तो पहले हम वेक्टर B को माइनस करें, इतनी बड़ी लाइन इधर ड्रा करके एरो इधर कर दे तो ये वेक्टर माइनस B बन जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये मिल जाएगा। कैसे ऐड करें? 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रा की, देन ऑन द टिप ऑफ इट वी हैव प्लेस द टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन, ज्वाइन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दिस विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और देखने से लग रहा है 7 न्यूटन आएगा। तो यहाँ पर जब हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम भी आ रही है, बिकॉज एवरीवेयर डायरेक्शन इन्वॉल्व। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इन दिस चैप्टर मैक्सिमम फोकस शुड बी ऑन डायरेक्शन। दिस इज हाउ यूजिंग टिप एंड टेल मेथड वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी। 2 or 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। अगर हमको दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम लाना है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, मीन्स उनके बीच एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन हमेशा आपस में बराबर आता है। ये दो कंक्लूजन्स हैं जो हम फ्रीक्वेंटली एज ए कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। So this is all about today's video lecture related with the vector algebra. This was my second video lecture. Hope आपको समझ में आया होगा, आप enjoy करेंगे इसको देखने के बाद। Any type of queries if you are having, you can contact me. Tell your friends to subscribe my channel. Please like, share also. And I will wait for your comments. Thank you.